سیاسی گروپ بھی ہیں، غیر سیاسی بھی ہیں، اس میں ہر جماعت کا بندہ، آپ رہنے دیتے تھوڑے، ہر جماعت کا بندہ وہاں پہ ترجمانی کر رہا ہے اس میں. لیکن ان کی اتنی کوشش کے باوجود بھی اگر یہاں پہ عوام اس طرح اکٹھی نہیں ہوئی جس طرح اکٹھی ہونی چاہیے، تو یہ لمحہ فکریہ ہے آپ کے لیے، یہ نجات نہیں ہے آپ کی، یہ آپ کی ایک بہت بڑی ناکامی ہے. اور اس ناکامی میں سیاسی جماعتیں جو ہیں بے شک وہ ٹاپ پہ ہیں، ساری سیاسی جماعتیں ٹاپ پہ ان کا ہے، لیکن تاجر برادری جو ہے وہ بھی اس لسٹ میں ناکامی میں ٹاپ کے اوپر ہی کھڑی ہے. کیونکہ تاجر برادری اور دوسرا نمبر جو آتا ہے آپ کا، وہ آپ کا آتا ہے اسٹوڈنٹوں کا. تاجر برادری اور اسٹوڈنٹ جب بھی اکٹھے ہوں گے تو ملک میں انقلاب آئے گا. آپ دیکھ لیں کہ آپ کے تاجر برادری کس حال میں ہے، بڑی زبردستی کر کے دکانیں بند کرائی، سب میں نہیں کہہ رہا، لیکن بعض کی زبردستی کر کے دکانیں بند کرائی گئی ہیں. قیامت والے دن جس دن سور پھونکا جائے گا، اظہر محمود کے بارے میں نہیں کہا گیا کہ اظہر محمود یہ کام کر رہا ہوگا، وہاں پہ تاجر کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ تاجر اپنی دکانوں میں اس طرح مشغول ہوں گے کہ وہ اپنا مال توڑ رہے ہوں گے. تو کیوں آپ کو، کیونکہ اس لیے آپ کو کہا گیا، آپ کا نام سرفہرست آیا ہے کہ آپ ہر ملک میں ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں. آپ کا کام ہے کہ آپ اپنی دکانوں پہ جب کوئی مشکل کھڑی ہو تو آپ عوام کا ساتھ دیں. آپ اس احتجاج میں بڑی مشکل سے شامل ہوئے ہیں، تو اپنے مال متاع کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کیسے کھڑے ہوں گے؟ آپ کے لیے اس نے جنت کے اندر دروازہ بنایا ہے، اس جنت کے دروازے کا ایک نام رکھا گیا ہے جس میں ایماندار تاجر کو داخل کیا جائے گا. کیا آج تاجر وہ اپنی حیثیت برقرار رکھے ہوئے ہیں؟ کیا وہ دین کا وہ احکام، وہ جو اس پہ انعام ہے اس پہ وہ کھڑا ہے؟ نہیں کھڑا. تو کیوں تاجر کو کہا گیا ہے کہ وہ مالدار ہے، وہ آپ کا دکھ سمجھ سکتا ہے. ایک عورت، ایک بیوی، ایک بچی، ایک بیوہ، ایک غریب، ایک امیر جب دکان پہ آ کے سامان لیتا ہے تو تاجر کو سب سے پہلے اس کی زندگی کا حالات پتہ چل جاتے ہیں کہ وہ فلاں وقت میں کس کے دور میں کتنا سامان لے کے جا رہی تھی، اور آج وہ اپنی استطاعت کے مطابق سامان لے کے نہیں جا رہی. وہ اس کے سامنے آ کے کھڑکھڑاتی ہے، روز بتاتی ہے کہ میرے حالات بڑے کم ہو گئے ہیں، آپ چینی کم کر دیں، دالیں کم کر دیں، آٹا کم کر دیں. تو آپ اپنے دل کو غور سے دیکھ لیں کہ آپ کس مقام پہ کھڑے ہیں، کہ ہمیں یہ کتنی مشکل کھڑی ہوئی ہے آپ کو صرف اپنی دکانیں بند کر کے باہر آنے کے لیے. تو اس ملک کے حالات ٹھیک ہونے، لیکن ظلم کیا ہے؟ تاجر غفلت میں، اسٹوڈنٹ، میرا اپنا بچہ $36,000 دے کے میں نے اپنے ہاتھ سے اس کو باہر بھیجا تعلیم کے لیے، FSC کرنے کے بعد چلا گیا. میری طرح تقریباً 10 لاکھ والدین نے اپنی چیزیں بیچی اور اپنے بچوں کو ڈالر یا پاؤنڈ لے کے دیے ہاتھوں میں، اور وہ باہر چلے گئے. اور وہ 10 لاکھ بچے کو جب آپ اس کو کوئی بھی ضرب دے کے دیکھ لے تو وہ 9-10 ارب ڈالر بنتا ہے. اور کیا یہ سیاستدان، میں ان کو کہوں یہ مجرم ہے؟ نہیں. یہ نگران وزیر اعظم آپ کا مجرم ہے؟ نہیں. کیوں؟ جب ایک بندہ مدہوش ہے تو مدہوش بندہ جو بھی کر گزرے وہ آپ کا مجرم نہیں ہو سکتا. مدہوش بندے کو کس نے بٹھایا؟ یہ تاجر برادری، یہ اسٹوڈنٹ اور یہ غریب عوام نے بٹھایا. آپ نے ایک لفظ آج تک نہیں بولا. کیوں؟ کیونکہ آپ کی وابستگیاں اپنی پارٹی سے ہیں. آپ طریقے لبیک سے ہیں، پیپلز پارٹی سے ہیں، نون لیگ سے ہیں، طریقے انصاف سے ہیں. سارا دن آپ نے ان کے کیوں گاتے ہیں؟ آپ نے کبھی انصاف کی بات نہیں کی. یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ آج اس حالت میں آ گئے ہیں کہ آپ کے پیسوں پہ یہ واپڈا والے بیٹھے ہیں، میٹر لگا کے جائیں رشوت دیں، آپ میٹر اتاریں رشوت دیں. اس کے گھروں کے اندر چولہے چل رہے ہیں الیکٹرک، وہ آپ کے پیسوں سے ہے. میں سپریم کورٹ چلا گیا 2 مہینہ پہلے. سپریم کورٹ کے باہر جہاں سے انٹری کی جاتی ہے
हमारे कार्ड लिखे जाते हैं, मोबाइल लिए जाते हैं, वहां पे मैंने अपनी आंखों से देखा तो वो हीटर पे अपनी चीजें गर्म कर रहे हैं। जिस मुल्क की सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये हालात हैं, क्या वो दावा आपका कर सकती है? क्या उसको पता है कि आप क्यों खुदकशी कर रहे हैं? क्या उसको पता है कि 12,000 लेने वाला एक इमाम, उसका 18,000 बिल आ गया, वो सामने एक मस्जिद 88-85,000 बिल आ गया। उनके रोने धोने के बावजूद, उनका ऐलान करने के बाद पता चला कि 250 रुपया लोगों ने दिया है बिल के लिए। कौन है आपका मुजरिम? क्यों नहीं तलाश कर रहे आप? क्यों सियासी वबस्तियां मोहब्बत, नाजायज मोहब्बत? वो लीडर तो आपको जानते तक नहीं, पहचानते तक नहीं आपको। ये आवाम तो पहचानती है आपको, ये जानती है। आए इनके दुख के लिए मुदावा करने के लिए। वो कह रहा है कि जन्नत, वो कांटा उठाने पे उसने जन्नत दे दी तो यहाँ पे हर रोज लोग भूखे मारे हैं। क्या वो अफसर है जो 200, 400, 500 बना के घरों में रह रहे हैं, या इनकी बात करना अफसर है जो अपने बच्चों को खाना नहीं दे रहे? तो मैं सब दोस्तों से इल्तिमास करता हूँ और दुखी हूँ, अंजुमन ताजरा ने रुआत से दुखी हूँ, पहले भी बड़ी दफा दुखी हूँ, आज भी दुखी हूँ। अगर ये दुकानें ना खोलते तो क्या ये गरीब हो जाते? क्या फाके पड़ जाते इनके घरों में? चले, आज तो आपको सच बात है कि लोग बड़ी मजबूरी में आ गए हैं। कोई बंदा आसानी से सफर करने के काबिल नहीं रहा, जिंदगी गुजारने के काबिल नहीं रहा। औरतें अपनी इज्जत बमाल कराने पर तैयार हो गई हैं। तो क्या ताजर बराती इतना भी सियासी जमातों को मैं नहीं कह सकता, क्योंकि आपको वो 72-74 साल से बड़े बेहतरीन तरीके से खाने दे रहे हैं, नाश्ते दे रहे हैं, बातें कर रहे हैं। मैं उनकी कैसे कर सकता हूँ? क्योंकि आप उनकी बातें सुन सुनकर खुश होते हैं। सेम इसी तरह जब मंडी में एक बंदा आके मंजन बेचता है और उसके अपने दांत नहीं है और आप 2 घंटे की तकरीर सुन लेते हैं कि ये मंजन वाला सच कह रहा है, तो क्या आपका सियासतदान जिसने इतने बड़े अभी वो बजट पास किए तो पता नहीं कौन कौन से लाभ बना दिए, वो ये लाभ आपके लिए नहीं बना सकता था कि जिन लोगों के घरों में बिजली माफ की गई है, पेट्रोल मुफ्त दिया जा रहा है, उनका अच्छा भी वो टीचरी यहाँ पे नहीं रह रही। वो टीचरें 60-70 हजार रुपया हट अदारे के लोग आपके मुल्क को लूट के ले जा रहे हैं। कोई ऐसा बिल नहीं पेश कर सकते थे? पिछली गवर्नमेंट नहीं कर सकती थी? वो तो अवामी थी। चले, इनको तो फिर कोई बंदा लेकर आया है, इन्होंने फिर भी वो बिल आपके लिए नहीं पेश किए। ये जहन से निकाल दें कि ये लोग आपके मुफाद के लिए। तो मैं आप लोगों को फिर इल्तिमास करूंगा कि आप इकट्ठे हों, सियासी बात नहीं करूंगा। देखिए, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला, वैसे मैं आपकी फतह भी नहीं कहूंगा आज, क्यों? सबसे पहले कोई भी चीज है, जहाद है, वो अपने आप से शुरू करना चाहिए। कोई भी जहाद है, कोई अमल है, नमाज है, रोजा, हज, ज़कात, सच बोलना, ये इंसान को अपने आप से शुरू करना चाहिए। मैं रुआत के लोगों से सवाल करता जा रहा हूँ, आप भी रुआत ही के लोग हैं। क्या यूनियन काउंसिल रुआत 12-13 करोड़ आमदन तक पहुंची थी हमारे दौर में या नहीं पहुंची? क्या आज रुआत यूनियन काउंसिल 12-13 करोड़ पे है? नहीं है। हर मई के दिनों में इश्तिहार होते थे कि जी अड्डे की नीलामी है, उसके ठेके की नीलामी है, इस ठेके की नीलामी है। आज तीसरा महीना गुजर गया, क्या ये शर्म की मुकाम नहीं है सियासतदानों के लिए अजहर समेत कि वो चुप बैठे हैं? और अड्डा, मुझे आप सब बाजार में काम करते हैं, जब बाजार के अंजुमन कोई बंदा बस बता सकता है कि अड्डा रुआत का कौन चला रहा है? कोई एक बंदा हाथ खड़ा करके बता दे कौन चला रहा है? ये हालत है आप लोगों की कि आपका 2.5 लाख रुपया यहाँ से चोरी हो रहा है रोज, इस जगह से। सिर्फ मैं कह रहा हूँ, मैं चैम्बर रोड की बात नहीं कर रहा। आप कैसे मुल्क के हालात बदलने में हमारे साथ शामिल होंगे कि जिनके सामने 2.5 लाख रुपया, जिन सियासतदान मेरे साथ खड़े हैं, क्या इनको खबर है? इन्होंने बात की आपसे
पूछे कोई आ जाके, मैं पूछता हूं तो क्या हाल मेरा किया गया है। मेरा खुदा जानता है कि अगर मैंने कोई गलत काम किया तो अल्लाह ताला मुझे और मेरे बच्चों को इबरतनाक शिकस्त दे। लेकिन जो लोग इस काम में शामिल हैं, मैं आपसे इल्तिमास करता हूँ अपने मुल्क के लिए, आप भी उनके लिए ऐसे ही दुआ करें। और मैं फिर बात करता हूँ कि आप लोग भी, क्योंकि हम लोग सारे बेसिकली तैयारी करते हैं कि हम सियासत में जाएंगे। अभी महीने 2-4 बाद आप देखेंगे कि हम लोग खुल के सियासत में आएंगे। तो ये बेसिक रूट है आपका, जहां से आपने करप्शन पुटनी है। इस मुल्क की तबाही का सबसे पहला जो बड़ा मुजरम है वो हर इंसान है जो करप्शन कर रहा है, बेशक वो टॉप पे ओहदे पे है या नीचे मेरी सतह पे है। तो मैं आपसे इल्तिमास करता हूँ, यही पैसा आप लोगों को कोई जरूरत नहीं थी खुदकशियां करने की। आपका इस्लाम कहता है कि हज़रत फारूक आजम की मिसालें आप हमें हर जुम्मे यहाँ पे बयान कर देते हैं। उलमाए किराम कहाँ है हमारे उलमाए किराम? तो यह यहाँ पे आलम क्यों नहीं आ जाए हमारी बात करने के लिए? हम कितनी मुश्किल में हैं। सैलाब आ गया, और सैलाब आ गया तो वो पैसा जो डैमों के जरिए आता है, बिजली के लिए आता है, तो वो वहां पे उन दरियाओं पे काम करने के लिए दिया जाता है, ताकि आप लोग आने वाले वक्त में कोई सैलाब ना आ सके। जब सैलाब आ गया, दीनी जमातें आ गई जी हम मदद करने के लिए आए जहाद करने के लिए। क्यों आफत आए सैलाब की? क्यों न बांधेंगे? कौन वो कहेगा जब हम रात से करप्शन खत्म नहीं कर सके तो कैसे पूरे मुल्क में आप करप्शन खत्म कर सकते हैं? ये बिजली, ये देखें, क्या रात में लोग नीचे नहीं सो रहे? क्या आपको खबर है? आपके हाथ में वक्त को खबर है, आपके चेयरमैन को खबर है, यूनिक कौंसल 5 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है उसको खबर है। तो फिर इससे बड़ा फेल और क्या होगा कि आप एक नाकाम हुकूमत में रह रहे हैं। ना आप दीन की तरफ गए हैं, ना आप दुनिया की तरफ आए हैं। इत्तेफाक करें, इत्तेफाक करें और इत्तेफाक करें, और इसी पैसे से आप लोगों की जिंदगी आसान कर सकते हैं। अगर हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने कांधों पे रख के सामान उस औरत के घर ठेवा के और बूढ़ी औरत के घर दे सकते हैं, तो चेयरमैन यूनियन कौंसिल सबसे पहले मजाज है वो जाके सामान मुहैया करे।